नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का अगला सत्संग हम लोग गुरुजी महाराज की कृपा से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये जो सत्संग है ये गुरुजी महाराज को जिस संगत ने दिया था उनका नाम सत्संग के नीचे नहीं छपा है। लिखा है सत्संग बाय ए डिवोटी। तो हमें नहीं पता कि सत्संग किस संगत का है। तो इसी दृष्टि से कौन से हम लोग गौरी त्यागी आंटी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि गौरी त्यागी आंटी इस सेशन को आगे बढ़ाएं। इसको आप रीड करें प्लीज। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। और आई हुई संगत को प्रणाम। दिस वॉज द फर्स्ट ग्रंथ रिटन अबाउट गुरु जी, एंड गुरु जी ने रेंडमली संगत को कहा था कि आप लिख के लाओ, एंड बुक वॉज रिलीज आफ्टर गुरु जी लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी। I got this book in Seattle when I went to Seattle in 2007 July, I think. तो इट वॉज ऑलरेडी इन प्रिंटिंग जब गुरुजी के ने शरीर छोड़ा। तो इसमें बहुत सारे सत्संग हैं जो पीपल हैव नॉट, द संगत हैज नॉट रिटन देयर नेम्स। यू नो द रीजन, मेनली हम लोग सब मिच्योर्ड है, समझ सकते हैं कि जब फैमिली मेंबर्स, आप पर्सनल लाइफ सबके सामने नहीं डिस्कस करना चाहेंगे, एंड बहुत सारे रीजंस है, मेनी रीजंस, यू कैन नॉट राइट योर नेम्स। हमारे भी बहुत सारे सत्संग होते हैं जो हम अंदर से डीपर लेवल पे हम लोग नहीं कर पाते, तो हम पूरी डिटेल नहीं शेयर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो ये आंटी ने का भी नाम नहीं डिस्क्लोज हुआ है। इन्होंने जब बुक वाज रिटन शी डिड नॉट राइट हर नेम, बट नाउ आई नो whose satsang is this. I don't want to disclose her name. और आंटी को अंकल ने कांटेक्ट किया था, बट शी इज नॉट कमिंग बिकॉज शी इज नॉट शी वाज नॉट अवेलेबल टुडे। तो ये सत्संग है। I am reading from Light of Divinity, page number 53 to 56, I think. Yes. Sorry, संगत जी, सॉरी संगत जी। ये जो आंटी है उनकी अर्ली लाइफ आप देखना और बहुत ध्यान से सुनना, और यू विल कम टू नो कि व्हाई शी इज नॉट डिस्क्लोज्ड हर नेम। चैप्टर का टाइटल है लाइक द सन राइजिंग सडनली ऑन अ सडन लैंडस्केप। One second, Sangrati, one second. Let me close the door. Sorry, Sangrati. Again, I am repeating the title, like the sun rising suddenly on a sodden landscape. This is page number 53 from Light of Divinity. It is not within my capacity or competence to put into words the supremacy of my Guru. For how can I do justice in cold words to his colossal divinity? However, in a sincere tribute of love and reverence for my Guru, I share my experience of supreme blessings with his approval. This is just a prayer. The path we seek is not different from the summit of salvation, the purpose of our being.
The journey from seeking to reaching this summit is a cinch of those who entrust their reins in the hands of their Guru. For we are not pathfinders, but followers. हमें तो एक रास्ता मिल गया, आपने सत्संग सुना है ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए. So we just have to follow Guruji. Whatever Guruji says, हमारे लिए हुक्म है, and we must follow that. I was born into a Sikh-Jat family. My family had to study happiness, tasteful living, good education, and discipline throughout my childhood. I have always been influenced by my grandfather, a devout follower of his faith and of his master. Slowly, the import of finding a guru dawned on me. So her grandfather's guru was different, not our Guruji. And she used to believe in Guru, her grandfather's master also. I was slowly the import of finding a guru dawned on me. I was married into a Jat Sikh family. My husband, the only son after 3 daughters in his family, was brought up with a lot of affection, which he seemed to have taken for granted. He learned to have his ways. To his negligence towards the family and lack of responsibility towards himself can perhaps be attributed his fondness for alcohol, his major problem. It is a dream of every girl to be happily married, and I was no exception. But when a family is haunted with alcoholism, nothing is any longer in anyone's control, and worldly fetters and problems become insurmountable. The burden of responsibility and my unhappiness soon disillusioned me. During that time, my grandfather visited me. My inner turmoil reached out to him without words, and he assumed I needed some help. My eyes filled up with tears, and I told him that I wanted him to pray for me to find a Puran Guru, a complete and perfect master. However hard a mortal being may try, she cannot find an enlightened master. The master finds her when she is ready to tread path. देखो संगत जी, she was at certain level of spirituality, previous life में इन्होंने बहुत भक्ति की होगी, और यही रीजन है कि जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मैरिड लाइफ में, she wanted to find a पूर्ण गुरु. उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा कि हस्बैंड को छोड़ दो, दूसरी शादी करो, ये वो, नथिंग. She wanted a पूर्ण गुरु because she learned from her grandfather. और इन्होंने भी पास्ट लाइफ में जरूर भक्ति की होगी. जो इतनी अर्ली एज में उनको समझ में आया कि एक पूर्ण गुरु होना चाहिए. पूर्ण गुरु क्या होता है ये मुझे तब तक नहीं पता था जब तक मैं गुरुजी के पास नहीं पहुंची. एंड एट दैट टाइम आई वाज 41. Shortly, my mother took me to visit Guruji in Chandigarh. Matlab, this family was in Chandigarh. From the moment I stepped into Guruji's, I could smell roses, and the sight of him flooded my eyes with tears. For the next few hours that I sat there, tears kept streaming down my eyes. Many times after first meeting Guruji, I could not control the outburst of emotions, and I simply could not understand why. Every time I visited him, I experienced a peace that passed understanding. It was as if the flood of tears was singularly transforming me by some alchemical cleansing. देखिए संगत जी, एंटर होते ही फर्स्ट एंट्री में शी पास गुरुजी's टेस्ट. गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था तेरी अभी तक एडमिशन नहीं हुई, बट शी गॉट एडमिटेड एंड हर डायरेक्ट कनेक्शन गॉट एस्टैब्लिश्ड वेरी फर्स्ट डे.
ये जब आंखों से आंसू होते हैं ना, तो कहते हैं आपकी क्लेंसिंग हो रही होती है। वी डोंट अंडरस्टैंड, जब हम जाते हैं आंखों से आंसू आते हैं तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आएगी हम क्यों रो रहे हैं, बट गुरु जी हमारी क्लेंजिंग कर रहे होते हैं। और ये क्लेंजिंग तभी स्टार्ट होती है जब आपके कर्म कटने शुरू होते हैं। यू आर रेडी टू सरेंडर, आप आ गए हो गुरु समझ के, एंड यू आर रेडी टू सरेंडर टू गुरु जी। इन द मीन टाइम my husband began to drink more. He lost all sense of responsibility and was squandering money. I tried telling him about Guruji and also persuaded him to meet Guruji. He laughed at me, saying, "Such gurus were a dime a dozen," and teased me about my conservative attitude. He also did not approve of my visiting Guruji. Around November 1999, my husband was posted to Lebanon on a UN mission. There is drinking problem worsened, and he was diagnosed as having liver cirrhosis. Our world fell apart. I took the first flight to be with him. The doctor clearly stated that his liver had packed up and that he would require a liver transplant within 2 years. To find a donor in such a short period was a near impossibility. Even if a donor was found, a transplant would have been exorbitant and in many cases unsuccessful. Doctors cautioned my husband that even a single drop of alcohol taken henceforth would prove fatal. Meanwhile, my parents kept going to Guruji and praying for my husband's life. After being in the hospital for a few weeks, we came back to Delhi. I requested him to meet Guruji. He did not come. But all the while that he was there, he sat in a corner and complained of how tired he was and how I had forced him to come. The same night, I approached Guruji and was full of emotion that I could hardly speak. My mother and I prayed in front of him to save my husband. And Guruji replied, "How can I help him? He is a non-believer." देखिए संगत जी, इनकी अर्ली लाइफ, just after getting married, she was suffering so much. Suffering always brings you closer to God. Either you become negative, then you become a negative character and lose life, or you become positive and take it calmly. जैसे गुरु जी कहते थे ना, शांत रहो। ये सब मुझे पहले नहीं पता था जब मेरा सफरिंग का टाइम था। गुरु जी हमेशा कहते थे ना, सिर कर बैसो सतगुरु तुम्हारे काज संवारे। ये सब मुझे पहले नहीं पता था। जब मेरा भी टफ टाइम था, we just were not, we did not take it positively. We always used to think कि गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया। बट जो गुरुजी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। देखो, I got Guru at the age of 45. This lady got Guru just after few years after she got married. She's luckier than us. और इन्होंने इतनी सफरिंग के बाद जो गुरुजी हमको लाइफ के लेसन सिखाना चाहते हैं ना, पेशेंस, टॉलरेंस, एंगर, in every situation you have to control your anger and be calm. ये सब गुरु के ग्रेस से आता है, but you have to learn suffering से, your भक्ति intensifies. इंटेंस भक्ति से ही आपको गुरु मिलता है। ऐसे चलते फिरते ये सब कर लिया, तो चलते फिरते एक शब्द लगा दिया, पूरे घर में प्ले हो रहा है, ये तो सब अर्ली स्टेजेस के लिए ठीक है। बट अदरवाइज रियल गुरु कृपा के लिए और रियल ग्रेस के लिए, टू हैव गुरुजी's ग्रेस, यू हैव टू डू इंटेंस भक्ति। उसी से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। और जिनकी सफरिंग होती है उनका प्योरिफिकेशन तभी हो जाता है। गुरुजी मेक्स एवरीबडी, हर डिसाइपल को ट्रेनिंग करते हैं, एक सीड प्लांट करते हैं, एंड देन कब सीड जर्मिनेट होगा, that not depends not on Guruji but on us, कि हम कब सरेंडर करने के लिए तैयार होते हैं, भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं।
तो उसके लिए अगर हम प्यार से सरेंडर करें, जो गुरु जी कहते थे कि डेली भक्ति करो, भक्ति करने से अगर आप थ्रू आउट करोगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, आपके कर्मास, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कर्मास धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे। और नहीं तो फिर जैसे ये लेडी की भी आपने देखा कि अर्ली लाइफ वॉज टू गुड, शी हैड हैप्पी चाइल्डहुड, हैप्पी लाइफ इन हर मदर्स होम, लेकिन शादी के बाद ही एवरीथिंग टर्न अपसाइड डाउन। ऐसे तो कभी कोई लड़की सोच के नहीं जाती कि शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, बट डेस्टिनी, दिस लाइफ इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्म। गुरु जी इज नॉट पार्शियल टू एनीवन, कि किसी को सफरिंग देंगे और स्टेज में किसी को नहीं देंगे, बट हमारी कर्मा है। बेस्ट ये है कि हमारे दिस लेडी इज लकी कि इतनी अर्ली स्टेज में सफरिंग आ गई तो उसने इजीली आपकी निकल जाती है, बिकॉज योर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, your parents, your body is strong, your mind is strong, everything is strong, so you can go through the suffering. But later stage में, old age में जो आती है ना mental pain, जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, that is worst. इसलिए अगर आपकी लाइफ में अर्ली स्टेज में सफरिंग है, you should be thankful to गुरु जी, कि गुरु जी थैंक यू, गुरु जी आपने सब निकाल दिया। और मैं यहाँ पे I don't want to name the lady, but I have seen that lady suffered in early life, but second part of her life was too good. कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। She lived for 90 years with perfect health, and she had all teeth in her mouth. She used to eat everything. So when we suffer in the early stage, at any stage, we should be always thankful to Guru Ji कि गुरु जी हमारे कर्म काट पा रहे हैं, and you should be very calm at that time. कोई घर में बीमार भी है तो भी डोंट प्रे टू गुरु जी आपने ये क्या किया, ये सब मैं कर चुकी हूँ। तो इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम वी नेवर यूज्ड टू लिसन एनीबॉडी सत्संग, तो हमारे पास ये सब मैसेजेस नहीं थे। अब तो 24 आवर्स सत्संग में मैसेजेस आते हैं गुरु जी के। सो एक्सेप्ट ग्रेसफुली, जो भी आपकी लाइफ में है एक्सेप्ट ग्रेसफुली। और आपको पता है ना, गुरु जी हमेशा कहते थे जो इनके छोटे बच्चे हैं कि बच्चे पालो। एक प्रॉपर बच्चों के लिए बच्चों की अपब्रिंगिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। इफ यू निग्लेक्ट योर चिल्ड्रन, उसका रिजल्ट आपने देखा ना क्या होता है। स्पेशली इंडियन फैमिलीज में जब 3 बेटियों के बाद बेटा होता है, वो कितना सेलिब्रेशन होती है उनके घरों में कि हाई बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। लेकिन बेटा आगे जाके क्या करेगा किसको पता है। गुरु जी के पास जिनकी बेटियां होती थी वो कहते थे गुरु जी इसको बेटे में कन्वर्ट करो। आई नो वन लेडी जिसका सेकेंड चाइल्ड ड्यू था, एंड शी केम टू नो, टेस्ट कराया था उन्होंने कि एक बेटी है। तो उसने गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी इसको बेटे में कन्वर्ट करो, और मैं तो गुरुजी का नहीं जो है रहने दे। तो वो नहीं मानी, नहीं आप कर सकते, आप सब कुछ करते हो, ये भी कर सकते हो, जब आप जीत करोगे तो गुरुजी वो चीज आपको दे देंगे, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शी से नहीं प्लीज गुरुजी इसको कन्वर्ट करो। गुरुजी ने बेटी को बेटे में कन्वर्ट कर दिया, एंड गुरुजी से अब कोई टेस्ट मत कराना। तो जब कोई उसके बाद डॉक्टर से चेकअप नहीं करा है, 9th मंथ में उनका बेटा हुआ। एट द एज ऑफ 30 years, जब उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी उस लड़के की, ही डाइड। देखो रेस्ट ऑफ लाइफ आपकी कितनी सफरिंग हो गई। अगर वो नहीं करवाया होता, उसने गुरुजी की आज्ञा में खुश रहते ना, कितने गुरुजी का हुक्म मानो, अगर वो खुश रहती जो था तो शायद ये नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने देखा है पर्सनली कि गुरुजी इतनी भी बड़ा क्राइसिस आपकी लाइफ में हो, आपको ब्रेक नहीं होने देंगे, आपको नेगेटिव अब नहीं होने देंगे। उसके बाद गुरुजी संभाल लेते हैं, एवरी स्टेप गुरुजी आपकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमें गुरुजी पे फेथ रखना चाहिए। और ये लेडी इसके ग्रैंडफादर के मास्टर के थ्रू शी न्यू कैसे ग्रैंडफादर मास्टर्स होते हैं, पूर्ण गुरु, उनके ग्रैंडफादर के कोई और पूर्ण गुरु होंगे, तो इस शी न्यू कैसे गुरु होते हैं। तो जैसे ही उसकी सफरिंग स्टार्ट हुई, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव, शी थॉट कि मुझे एक पूर्ण गुरु के पास जाना है। बिकॉज वैसे भी वो जाट फैमिली में से है, सरदारों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि शुरू से गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं और शब्द सुनते हैं कि पूर्ण गुरु होते हैं और पूर्ण गुरु ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसकी स्पिरिचुअल जर्नी इसके पास स्टार्ट हुई। देखो इसकी लाइफ
अब बहुत इजी हो गया, आई नो दिस लेडी, भी मैंने बात नहीं की है, मैं कभी करूंगी उनसे बात। लेकिन उनकी सफरिंग निकल गई, उनकी सारी ट्रेनिंग हो गई। सफरिंग में क्या होता है, यू बिकम वेरी काम, यू एकदम आप में टॉलरेंस भी आ जाती है। बिकॉज अगर हस्बैंड ऐसा होगा, आप उसके सामने एक वर्ड बोल नहीं सकते, कोई डिमांड नहीं रख सकते, कोई अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ के भी नहीं जा सकते। इतनी जल्दी आदमी नहीं उम्मीद छोड़ता ना, क्योंकि हर माँ बाप भी चाहते हैं कि अपनी बेटी सुखी रहे। बट लाइफ में वही होता है गुरु जी के पास आने के बाद, जो गुरु जी चाहते हैं, और फास्ट प्रोग्रेस हो जाती है। जिनकी लाइफ में अर्ली स्टेज में, बिगनिंग अर्ली लाइफ में जिनकी सफरिंग होती है, उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, जो फाइनल स्टेज पे बोलते हैं ना, अहंकार नहीं होना चाहिए। वो अहंकार सबसे यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जो पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, रोज पार्टीज में जा रहे हैं, रोज 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, उनकी ईगो देखो कितनी बड़ी होती है। और यहाँ पे जब सफरिंग इतनी अर्ली स्टेज में, आपके पास कुछ है ही नहीं ईगो के लिए, आपके मुंह से एक वर्ड कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी आंटी के साथ, जो इनकी सफरिंग बहुत जल्दी निकल गई। और अब आई डोंट नो उनके हस्बैंड हैं या नहीं है, बट बहुत ब्लेस्ड आंटी है ये। After being in the hospital for a few weeks, we came back to Delhi and I requested him to meet Guruji. He did not come. He did come, but all the while that he was there, he sat in a corner and complained of how tired he was and how I had forced him to come because her husband was too negative. That's why he was feeling very tired in presence of Guruji. The same night, I approached Guruji and was so full of emotion that I could hardly speak. My mother and I prayed in front of him to save my husband, and Guruji replied, "How can I help him? He's a non-believer." So, Guruji cannot help non-believers. But if one member of the family is connected, everybody is blessed in the family. In the days that followed, I would visit Guruji alone because my husband would never accompany me. One night after returning from Guruji's place, while I was fast asleep, a sudden great force, like a swooshing wind, entered my room. I was so scared that I sat up upright in my bed and started saying my prayers with my eyes closed. I experienced white light piercing the darkness and flooding the center of my forehead. Guruji was within that white light. He said he would cure my husband now. In the 15-20 minutes that followed, I smelled nauseating odors similar to those that emanate from operating rooms. After a while, everything cleared up and I went back to sleep. Guruji told me he had blessed my husband. तो गुरुजी ने आंटी को कंसोल कर दिया, क्योंकि मैंने तेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया है। एंड दिस इज द डिवाइन दर्शन गुरुजी gave her, कि उनके फोरहेड में थर्ड आई गुरुजी ने ओपन कर दिया एंड गुरुजी एंटर्ड from her third eye. This is the biggest blessing one can have. 6 years have passed since that day, and my husband continues to drink relentlessly. Keeping in mind what the doctors had said, my family and I are amazed at how Guruji is looking after him day and night. My husband, in his own way, believes and recognizes the gift of life given to him by Guruji. You know, but he did not change. He kept drinking, even Guruji blessed him. उसके बाद भी he kept drinking because he did not have self-control. आपके कर्म होने चाहिए, और you have to accept Guruji ना। गुरुजी ने तो उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपके व्हाट गुरुजी सेड, कहते हैं गुरुजी का हुक्म मानो, बट ही डिड नॉट
मानो गुरुजी का हुक्म, यानी कि आप ड्रिंकिंग, बट गुरुजी kept him alive for, cirrhosis of liver के बाद you live hardly for 1, maximum for 2 years, but without any transplant he lived for 6 years. ये तो जब when she had written this, he was alive for 6 years. He kept drinking day and night, and he should have stopped, but किस्मत एक कर्म है आपके. So he could not stop drinking because he had no self-control and he did not believe in Guruji. And he should have surrendered that time, but he could not surrender. But surrender, Guruji की grace से आता है. And for grace, you have to have direct connection, like आंटी का है. आंटी के ऊपर गुरुजी का ग्रेस था, इसीलिए ये अभी तक he was alive. Day and night he used to drink, but still was going on. The time-tested scriptures of the world all agree that before man is born, the day of his death is ascertained, and that no man can grant him even a breath more. However, the power to burn man's karma lies with the Supreme Creator. Guruji is that cosmic director, the manifestation of that supreme power, who rewrote the play of my life. गुरुजी ने उनको अलाइव रखा फॉर दैट लेडी, ऐसे ही ओनली गुरु कैन गिव न्यू लाइफ, ओनली पूर्ण गुरु कैन गिव न्यू लाइफ, भगवान कैन गिव न्यू लाइफ. कोई डॉक्टर, कोई मल्टी मिलियनर बिलियनर कैन नॉट बाय ब्रेथ, बट भगवान गुरुजी सबको तो नहीं देते थे, किसी किसी को देते थे. एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है. और एवरीबडी सेड शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. मैंने भी पता नहीं क्या कर्म किए. एंड दिस द फैक्ट कि जैसे आंटी का भी सरेंडर हो गया, मेरा सरेंडर भी मेरी बीमारी के बाद हुआ है. तब तक मैं बहुत इजी लेती थी गुरुजी को. आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी इन 2001, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बस आधी बातें सुनती थी, आधी नहीं सुनती थी, जो गुरुजी कहते थे किया नहीं किया. तो लेकिन 2000 फिर भी गुरुजी ने, मैं जब 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए थे, एवरी डॉक्टर सेड शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. मेरी आईसीयू यूनिट के बाहर एक रेड स्टिकर लगा हुआ था. एक तो ग्रीन स्टिकर होता है, उसका मीनिंग पेशेंट विल रिकवर. एक और स्टिकर होता है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट थर्ड होता है रेड स्टिकर. रेड स्टिकर का मीनिंग होता है पेशेंट कैन डाई एनी मोमेंट. वो मेरा फर्स्ट डे से जब मैं एडमिट हुई तभी से लगा हुआ था फॉर 20 days. एंड गुरुजी गिव मी न्यू लाइफ. देखो गुरुजी, जबकि मैं बहुत कम बातें गुरुजी की मानती थी, गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड की थी 2 बारी नाम चेंज करके. फर्स्ट ही गेव मी नेम मीरा, एंड सेकंड नेम ही गेव मी गौरी. मीरा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर ही गेव मी गौरी इन 2006. 2004 में उन्होंने मुझे मीरा नाम दिया था. और एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि कहा भी था, ही वाज सिटिंग ऑन द क्या है किचन के बाहर साइड बोर्ड पे, एंड उन्होंने मुझे कहा जा तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है. और देखिए दैट टाइम आई वाज आई थिंक 55 के करीब होंगी मैं, बट गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड की है. एंड नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी 70. तो आप देखिए गुरुजी ने कैसे मुझे लाइफ दी है. और उन्होंने मुझे जब कहा टेवा दिखा ले, तो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप एक बनारस के पंडित ने बनाए, और वो संस्कृत में है, तो हमने कभी दिखाई नहीं थे. बट बहुत पहले से उसमें लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ 60 के बाद नहीं है. तो गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड की है. तो सिर्फ एक पूर्ण गुरु ये सब कर सकते हैं. कोई ज्योतिष, कोई बड़ा बड़ा पंडित लोग ये सब काम नहीं कर सकते जो गुरुजी करते हैं. तो हमको आजकल इतने सत्संग है, सब मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो हमारी फैमिली में, हमें फेथ रखना चाहिए और सिर्फ गुरुजी पे ध्यान रखना चाहिए. पूरा फोकस, सारी एनर्जीज गुरुजी में लगानी चाहिए. आप किसी से फैमिली में आर्ग्यूमेंट मत करो, किसी से फाइट मत करो. आप सोचो कि हेड ऑफ द फैमिली इज गुरुजी, एंड यू हैव टू सरेंडर टू गुरुजी. और गुरुजी एक एंड जस्ट रिमेन काम ऑल द टाइम. और बहुत गुरुजी आपको शक्ति देंगे. अगर आप मंत्र जाप करोगे, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है.
रामायण में लिखा है राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे गुरुजी फिजिकली नहीं है, लेकिन पूरी गुरुजी की एनर्जी, गुरुजी का सटल फॉर्म है मंत्र जाप। जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे, और कुछ करो ना करो, देखो हर रोज मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, हर रोज सत्संग अटेंड करने भी पॉसिबल नहीं है। जब आप फैमिली में रहते हो तो आपको फैमिली ड्यूटी सबसे पहले करनी होती है। और आपने देखा कि फैमिली ड्यूटीज जो लोग नहीं करते और बहुत लाड प्यार में भी बच्चे बिगाड़ लेते हैं, पैसे वाले लोग स्पेशली। ऐसा नहीं, बिना पैसे वालों के लोग भी बच्चे बिगाड़ लेते हैं क्योंकि ध्यान नहीं देते। तो हमको फैमिली ड्यूटीज करनी, जिससे हमारे बच्चे कि हम अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि वो गुड ह्यूमन बीइंग बने। व्हाट वी टेक फ्रॉम द यूनिवर्स वी हैव टू रिटर्न इट। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, और आपने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। लाइफ इज वेस्ट। उसके बाद ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो गई, हमारी भी, बच्चों की तो हुई हुई, हमारी भी वेस्ट होगी। और इसलिए हमको ये सब नहीं करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की तरफ, गुरु की तरफ, यूनिवर्स की तरफ। उन सबको किए बिना गुरु नहीं मिलता। तो इसलिए हमको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चों, जिनके बच्चे छोटे हैं, गुरु जी हमेशा कहते थे बच्चे पालो वही गुरु सेवा है। तो पूरी एनर्जी लगा के हमको बच्चे पालने चाहिए तब। और जब हमारा राइट टाइम होगा, हम बच्चों से फ्री हो जाएंगे, तो हमें गुरु मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे भी, मेरे दोनों बच्चे पढ़ने चले गए थे। मेरी बड़ी बेटी दिल्ली में आ गई थी, दिल्ली में पढ़ रही थी, और मेरी छोटी बेटी भी पढ़ने चली गई थी 12th में। उसके बाद मुझे गुरुजी मिले सेम ईयर, इन 2001 में निकिता पढ़ने चली गई, तब मुझे गुरुजी मिले। और तब मुझे गुरुजी मिला। तो हमें सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। सिर्फ मेन है कि हम अपनी ड्यूटी करते रहा करें, ड्यूटी करें हम पूरी। हमसे जो नीचे हैं उनकी भी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं कि जो हमसे नीचे हैं। कुछ लोग फैमिली में हेल्पर्स को भी बहुत इल ट्रीट करते हैं। अगर आपके घर में काम करने वाले आपसे दुखी रहते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। दिन रात आपके घर में ही रह के आपको आपका बारे में नेगेटिव सोचेंगे या मन से दुखी रहेंगे, तो भी आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती गुरु की। ये सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्लस जिनको भगवान ने पैसा दिया है, उनको खुले हाथों से दान करना चाहिए। जो गुरु जी कहते थे ना, गुप्त दान करो। दान करने से भी कलयुग में बहुत कर्म कट जाते हैं। दान के अलावा जो गुरु जी कहते थे गुप्त पाठ करो, तो हमको गुप्त पाठ करना चाहिए। और जो गुरु जी ने कहा था ना मुझे कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करें, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब हर रोज नितनेम, मतलब डेली रूटीन में हमको डेली सुबह थोड़ी देर जरूर गुरु के पास बैठ के, गुरु के ऑरा में रह के, फिर हमको गुरु जी का जाप करना चाहिए। दैट इज मच मोर पावरफुल देन वॉकिंग अराउंड डूइंग मंत्र जाप। तो इन सब चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम गुरु के ऑरा में रहें। मुझे याद है, जरूरी नहीं कि हम मंदिर में जाके गुरु के ऑरा में रह सकते हैं। हमारे घर में भी गुरु जी की एक फोटो हो और हम दिया जलाएं और उनके पास बैठे, तो गुरु जी का ऑरा वही है। हर फोटो में गुरु जी होते हैं। तो ऐसे मुझे याद है, मैंने एक सत्संग सुना था लॉन्ग बैक कि एक गुरु का कोई डिसाइपल था। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे नहीं थे, तो उनके गुरु को उन्होंने कहा गुरु जी बच्चे दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी किस्मत में बच्चे नहीं, तो तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। तो शी सेड गुरु जी पर आप दे सकते हो, ये हमको पता है, जैसे गुरु भी दे सकते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम 3 महीने रोज मेरे दर्शन करने आना। जो गुरु जी नित्य की बात कर रहे हैं ना, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये बात गुरु जी ने मुझे कही थी, सुनवाई थी। ये लाइन एक शब्द में प्ले हो रही थी, नाम बीच लो कर्मा वाले आई रुत बीचने की, ये शब्द का टाइटल है, फर्स्ट लाइन है। तब मुझे गुरु जी कहा सुन, ध्यान से सुन। उसमें ही था कि अपने वेट के इक्वल जो सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब दान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है गुरु जी ने दी है नितनेम को। हर रोज सुबह नितनेम करना चाहिए। उससे ग्रेजुअली धीरे 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 आपके कर्म कटते रहेंगे और आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग होता रहेगा। तो वो गुरु वो गुरु ने उनको कहा कि भाई आप रोज मेरे 3 महीने तक हर रोज मेरे दर्शन करने आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंडी हो जाए, वो अपने गुरु के दर्शन करने जाते थे। 3 महीने तक रेगुलर रोज करने जाते थे। 3 महीने बाद गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, उनके गुरु ने उनको, और उनका एक बेटा हुआ। जबकि गुरु उनको कह दिया था कि अगर बेटा होगा तो 12 साल बाद जिंदा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हमको बच्चा चाहिए। तो उन्होंने ब्लेस कर दिया, उनका बेटा हुआ। तो जब बेटा हुआ,
तो वो अपने गुरु के पास उसको ब्लेस कराने लगे। तो गुरुजी ने कहा आपको पता है ना, याद है ना मैंने क्या कहा था कि 12 साल बाद ये नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अगर आप बेटा दे सकते हो तो आप इसको जिंदा भी रख सकते हो। तो देखिए गुरुजी हमारे कहते थे ना मांगा मत करो, पर उनको मांगना आता था, मांगना सबको नहीं आता। तो उन्होंने कहा अगर आप एक बच्चा हमको दे सकते हो तो आप बच्चे को जिंदा भी रख सकते हो। आपको ही बच्चे को जिंदा रखना, आप जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन आपको बच्चे को जिंदा रखना होगा। और आप गुरुजी उसको लॉन्ग लाइफ ब्लेस कर देते हैं बच्चे। तो देखिए कितना उन्होंने किया, जो गुरुजी का हुक्म माना। और ऐसे ही हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे मांगा मत करो, क्योंकि गुरुजी को ये पता है कि हमको मांगना नहीं आता। मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना था कुछ टाइम पहले, एक अंकल को कैंसर था और उन्होंने अंकल ने गुरुजी को आके बोला कि प्रे किया। अभी आई थिंक अभी रिसेंटली वो गुरुजी से नहीं मिले, अभी 2-4 साल पहले कनेक्ट हुए थे गुरुजी से। तो उन्होंने, उनको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है, बहुत पैसे वाले होंगे। तो उन्होंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मुझे 2 साल 2.5 साल दे दो, मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दो, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर लूंगा। गुरुजी ने उनको 2.5 साल जिंदा रखा। और उसके बाद जब उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली, ही डाइड। आप देखिए अगर उन्होंने इंस्टेड ऑफ दिस ये मांगा होता कि गुरुजी आप मुझे जिंदा रखो, मेरा कैंसर ठीक कर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो शायद आज वो जिंदा होते। हम यही गलती करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग्स लेके खत्म कर देते हैं गुरुजी से। और बेस्ट है अगर हमको मांगना नहीं आता तो हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। और देखिए एक मैंने तो गुरुजी से कभी नहीं मांगा, क्योंकि गुरुजी खुद ही मुझे प्लान कर देते थे और गुरुजी ने मेरा माइंड कंट्रोल किया हुआ था। कभी मैं कुछ मांगा ही नहीं मैंने गुरुजी से 6 साल में। लेकिन मेरे घर में एक स्वामी आए हुए थे। देखिए स्वामियों का मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल कोई, हमारा तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं उनसे। तो एक स्वामी आए थे, उन्होंने चिन्मय मिशन के स्वामी जी थे वो। तो वो लंच पे आए थे और जब वो लंच कर चुके तो सबको ब्लेस कर रहे थे कि क्या दे रहे थे। तो मुझे भी दिया उन्होंने। फिर संगत रैंडमली उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी। सिंस मेरे घर में लंच था तो मुझे समझ दिया मैं इनसे क्या बोलूं। तो मैंने उनसे कोई स्लिप पकड़ा दी। ओके, साइड टेबल पर रखी हुई थी, स्क्वायर वाली स्लिप पकड़ा दी और मैंने कहा स्वामी जी राइट समथिंग फॉर मी ऑन दिस स्लिप। अब स्वामी जी ने क्या लिखा, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। उन्होंने सब आशीर्वाद मुझे दे दिया कि आप भक्त, उन्होंने ये समझा भी दिया कि भक्ति ओवरनाइट नहीं होगी, या तो आपने 5 जन्म में बहुत ही तपस्या की है। तो जैसे मैंने कहा था ना गुरुजी सीड प्लांट करते हैं, तो ग्रेजुअली वो ग्रो करती है। जितना आपको टाइम मिले फैमिली लाइफ, उतनी देर आप भक्ति करो। तो अगर आप कंटिन्यूसली करते रहोगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि गुरुजी आपका रास्ता क्लियर करते जाएंगे। गुरुजी आपका हर रास्ता क्लियर करते जाएंगे, हर आपकी जर्नी आपकी आसान हो जाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी। उसके बाद गुरुजी सब कुछ करेंगे आपके लिए, बट फर्स्ट स्टेप हमको लेना है। और वो सबसे बड़ी, आप कुछ करो ना करो, बट थोड़ी देर गुरुजी के ऑरा में जरूर हमको बैठना चाहिए हर रोज। ये सबसे बड़ी लेसन मुझे गुरुजी ने बहुत पहले सिखाया था, लेकिन तब हमको सीरीज नहीं मिलती थी, मुझे पंजाबी आती नहीं थी, मैं भूल गई जब गुरुजी ने कहा कि कौन से शब्द में था। 10-12 साल बाद जब मैंने अपने घर में ही शब्द सुना तो मुझे शब्द तब याद आया कि हाँ गुरुजी ने मुझे कहा था। तो इसलिए यही आज के सत्संग में नहीं, मोस्ट ऑफ द सत्संग में यही मैसेज है कि आप भक्ति करो। सारे स्क्रिप्चर्स में, सारे शब्द में भी यही मैसेज है कि आप नाम जपो। गुरुजी ने कलयुग में बहुत आसान भक्ति कर दी हमारे लिए और यही कहा है कि पाठ करो। और यही पाठ है सब कुछ, पूरी स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी ने हमारी सिंप्लीफाई कर दी है कि पाठ करो बस, चाहे कैसे भी करो। चलते फिरते करोगे तो भी उसका ऐसा नहीं कि असर कम होता है, आपको उतना ही फल मिलेगा। बट जैसे हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे में 5 मिनट जरूर गुरुजी के लिए निकालना चाहिए। और धीरे धीरे भक्ति से क्या होता है, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, आप में सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आगे, माई फैमिली एंड हैव एक्सपीरियंस न्यूमरस इंसिडेंट्स वेयर वी हैव कॉल्ड आउट टू गुरुजी एंड हैव सडनली seen things fall into place
as if touched by magic wand. I once had the privilege of escorting more than half a dozen friends to whom I had been singing the praises of my Guru to meet Guruji. With my limited vision, I prevailed upon them to not ask for anything, though it was contrary to what I had done when I touched the feet of Guru. 1 second, Sangat ji, 1 second. He looked at me, and to my astonishment, I said that everyone came to him to ask for something like a divine mirror. Guruji apparently had caught the reflections. No one who comes near him ever goes back empty handed. Upon touching his feet, a businessman might be blessed with prosperity, a sick man with health, and a student with knowledge. Some are aware of the gift they receive, others ignorant of the hidden blessings. His love knows no bounds and immaterial of whether you are a believer or a non-believer. His grace touches everyone. He makes no demands, asks you to keep no promises, but slowly his divine presence weaves magic and transforms you from within. Everyday people ridden with sorrow come in his presence, and his grace illumines their faces like the sudden rising of the sun over a sodden landscape. जय गुरु जी संगत जी इन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है सत्संग ऑफ अ डिवोटी। आई थिंक गुरु जी ने भी नहीं कहा होगा उनको नाम लिखने के लिए, क्योंकि गुरु जी कभी किसी की पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज नहीं करते थे, कभी किसी को गुरु जी एम्बेरस नहीं करते थे। गुरु जी को सबका आगे पीछे सब कुछ पता होता था। ही नेवर यूज्ड टू से अ वर्ड। और आपने क्लियरली सुना कि फर्स्ट डे जब आप व्हेन यू टच गुरु जी फीट, ब्लेसिंग स्टार्ट्स कमिंग इन। वी डोंट फील समटाइम्स, जैसे मेरे को भी बहुत टाइम बाद समझ में आया कि I think many years, I think 2008 में, once I was talking to Nitika and Nitika said, "Mummy, write something about Guruji." I said, "We don't have any blessings from Guruji. How can I write something?" She said, "No, Mummy, Guruji has blessed us." I said, "No," because I wanted something from Guruji. That did not happen in Guruji's physical life. So I was very disappointed. तो मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने हमें तो कोई आशीर्वाद नहीं दिया, मैं क्या लिखूं? And she said, नहीं मम्मी लिखो, अपने गुरुजी ने आपको बहुत आशीर्वाद दी, डोंट से लाइक दैट। और जब मैंने मोबाइल में लिखना शुरू किया, फर्स्ट डे इन 2008 आई रोट 55 ब्लेसिंग्स। तो हम देवर ऑल हिडन नहीं थे, बट मुझे आई वाज इग्नोरेंट कि मैं कुछ एक्नोलॉजी ही नहीं करती थी गुरुजी के ब्लेसिंग्स को। गुरुजी मुझे बहुत कुछ समझाना चाहते थे, बट आई थिंक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम टू रिसीव हिज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग फिर भी होती है, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। तो आपको बहुत लंबा टाइम लगा। गुरुजी की मैंने कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करवाई टिल 2019 के बाद नाउ आई बिलीव कि अब मेरी बारी है। मुझे गुरुजी की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं वेस्ट करानी चाहिए। भगवान ने हमारी खुशी लगाई, और बाकी की संगत के लिए भी रिक्वेस्ट है कि मांग मांग के गुरुजी को इतनी उनकी एनर्जी मत वेस्ट करो। वो कर देंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। आप इमीडिएटली मांगोगे, एंड इफ ही डज इमीडिएटली ग्रांट्स, देन इट्स अ शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग, आप आओगे ही नहीं। अगर गुरु जी ने, मैं जो चीज लेने गई थी वो दे दी होती फर्स्ट डे, मैं वापस मुड़ के नहीं गई होती गुरु जी के पास। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि गुरु जी ने मेरा काम नहीं किया। गुरु जो करे उसी में ब्लेसिंग्स हैं, एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम and have faith in Guruji and keep praying to Guruji. Only Bhakti can do everything for us. And Bhakti grows gradually. जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे स्वामी ने आशीर्वाद दिया था, Bhakti grows gradually. तो जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, you will feel his presence, और उनकी blessings भी आपको फील होगी। तो बहुत आपकी जर्नी इजी हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ इजी हो जाएगी, everything will become so easy. एंड सबसे बड़ी बात, तो गुरुजी कैन ग्रांट मोक्ष। इसी जन्म में हमको मोक्ष के लिए कोशिश तो करनी चाहिए।
और उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लेसन ये कि जो गुरुजी बोले वो हाँ। शब्द में सुना है ना, सर कटा के भी गुरु मिले तो सस्ता है। कोई भी प्राइस में गुरु मिले, किसी को खो के किसी को पाके, सब कुछ ठीक है, पर गुरु आपकी लाइफ, आपको छोड़ना नहीं चाहिए गुरु जी को। गुरु कभी किसी को नहीं छोड़ता। एक बार नीतिका को भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देके बोला था कि मैं कहीं नहीं जाता, तुम ही लोग छोड़ के जाते हो। एंड ऑनेस्टली 2007 में जब गुरुजी फिजिकली चले गए एंड मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मैं भी द्वारका भी गई हूँ 1 साल तक। मैं डिटेल में नहीं जाती, द्वारका भी गई, वहां से कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बोला चंडीगढ़ में जाओ, तो वहां पे भी एक स्वामी है, वो तो इतने बड़े स्वामी थे कि उनके आश्रम हैं बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे मैं नाम नहीं कहना चाहूंगी किसी का, क्योंकि मेरी गलती थी, नहीं जाना चाहिए था मुझे। जो आपने एक बार गुरु जी के फीट टच कर लिए, जो यहाँ से मिलेगा सब कुछ यहीं से मिलेगा, जो नहीं सब कुछ आपको इसी जन्म में मिलेगा, यहीं से मिलेगा। और जो यहाँ आपका काम नहीं हुआ वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो मंत्र जाप भी करते हैं, मैंने देखा हुआ है कि जब कोई फैमिली में बीमार होता है ना, वो मंत्र जाप चेंज करके वो लगा देते हैं, महामृत्युंजय जाप। ये सब हम कर करके, सारे देवी देवताओं की पूजा करके, उनकी ब्लेसिंग से हम गुरु जी तक पहुंचे। सारे देवी देवता गुरु जी से निकले। सबसे पहले तो शिव ही थे, शिव से सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। जब हमको पूर्ण गुरु शिव जी मिल गए तो हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एक की भक्ति करो, सारी एनर्जी एक में लगाओ, चाहे कितनी भी बड़ी लाइफ में फैमिली में ट्रेजेडी है, आपको यही मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु जी का मंत्र ही सब कुछ कर सकता है। मेरी फैमिली में मैं इतनी क्रिटिकल थी, उन्होंने पूरा टाइम मंत्र जाप मेरे आईसीयू में चलता था। बट ये है कि अगर आप मंत्र जाप चेंज करते हो किसी के भी कहने से, और आपकी फैमिली मेंबर्स के कहने से आप लोग वो लगा रहे हो, गुरु जी का मंत्र छोड़ के अगर महामृत्युंजय जाप करते हो, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं मंत्र जाप तो सब पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब आपको अपने गुरु मंत्र में फेथ दी। और फेथ होना वो सरेंडर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको फेथ ही नहीं तो आप सरेंडर कैसे करोगे? और सरेंडर किए बिना कभी मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमको फेथ रखना चाहिए, जिस हालात में हो, जहां भी हैं। इजीएस्ट साधना है मंत्र जाप करना, तो हमको मंत्र जाप करना चाहिए। अंकल जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू रेनू आंटी। थैंक यू सुरेश अंकल जय गुरु जी एंड आंटी। जय गुरु जी गौरी आंटी। आपने जो सत्संग किया है, जो मैं सुन रही हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ, आपने गुरु की भक्ति में दिल निकाल के रख दिया बड़ी सच्चे मन से। मुझे इतना बोलना अच्छा नहीं आता, पर जो जो आप बोल रही थी वो मेरी पूरी कहानी आपने मेरे जीवन की बोल दी। मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था तो मैंने आपका जो सत्संग आप डिविनिटी में से कर रही थी कि वो आंटी को शुरू में ही अपने कर्म काटने पड़े और बाद में तो बहुत मुश्किल होती है, हस्बैंड उनके नहीं मानते थे। तो गुरुजी हमेशा यही चाहते थे कि मानो, मांगो नहीं मानो। और जो आपने एक फेथ के ऊपर पूरा बोला है वो काबिल तारीफ है। गुरुजी इतने खुश होंगे, गुरु के सारे वचन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मेरी कहानी है कि जैसे जीवन दान आपने कहा गुरु ने मुझे दिया, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे टेबल में क्या लिखा है। जब मैं गुरुजी से 99 में जुड़ी, उससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मैं किसी गुरु को नहीं गुरु को जोड़ूंगी, क्योंकि मैं बचपन से, छोटेपन से मेरे फैमिली में गुरु की, शिव जी के इतनी पूजा भक्ति, मेरी नानी 105 की हुई और मेरे को 1 महीने की पैदा हुई तो टेवा में लिख दिया कि ये पैदा नहीं होगी, इसको शिव जी के मंत्र जाप करो जो ओम नमः शिवाय 11 पंडित करते थे। उस वक्त नहीं मालूम था कि गुरु जी कौन है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने
जो वो लेडी का सुनाया है, जिनका आप आंटी का नाम नहीं बताना चाहती, वो आज भी जिंदा है, तो अपनी फेथ पे वो कभी उनका विश्वास नहीं टला। उनको दुख हुए, और गुरुजी ने उनके फेथ के ऊपर कि ये इतना फेथ करती है, जिसके जितने पुराने कर्म हैं सब मैं कटवा दूं, उनके कट गए। उनके हस्बैंड भी, गुरुजी ने जितनी कोशिश की उतने दिन वो रहे, और गुरुजी ने अपने पास ले लिया बिना किसी तकलीफ के, या जो भी तकलीफ है। जब वो कोई गुरु की बात की अवहेलना करता है तो फिर तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होती है ना। हम तो कहते हैं कि हमने दुनिया में मंदिर बने हैं, दुनिया में सब कुछ बने हैं, सारा निचोड़ ये है। आज मैं 80 साल की हो गई, जब गुरुजी से मिली थी तो मेरा 60 साल पूरे होने वाले थे 2005 में। गुरुजी से तो मिली थी मैं 99 में, पर मैंने इतना फेथ रखा, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल में थी कि मेरा बेटा मौत के मुंह में था, और आर्मी की कारगिल की लड़ाई में। तो मैं गुरुजी के पास गई 99 में, जिसने भी मुझे भेजा कोमा से निकल आया, पर वो 2.5 साल का बच्चा बन गया। उसका ना वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, ना वो कुछ नहा सकता है, ना खेल सकता है। मैं तो कभी ये सत्संग में बोला भी नहीं, पर आज मेरा मन हुआ। मैं इतनी तकलीफ में थी, माँ बाप कितनी तकलीफ में होते हैं, जबकि हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आर्मी अपने देश की सेवा। और गुरुजी को मैंने देखा, उनका डिसिप्लिन, उनके 4 थाली में खिलाना, ना कोई ये देखना कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, ये डिसिप्लिन बिल्कुल आर्मी टाइप। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं। ऐसा गुरु, पूरन गुरु ना तो ये जो आए हैं एक डिविनिटी लाइट बन के, ना कभी होगा। और ये गुरुजी का जो मंत्र जाप है, या जो गुरुजी को जो मानेगा, गुरुजी की शरण में रहेगा, गुरुजी पे फेथ रखेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, सिर्फ एक को मानो। सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं बिलीव मी संगत जी, बिलीव गौरी आंटी, जब मेरा बेटा इतनी तकलीफ में था, मैंने मेरे को लेके गए, मैं उनके चरणों में गई, मेरे आंसू इतने निकले, पर मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैंने उनको शिव जी के रूप में देखा, जटाधारी। पहले दिन ही मेरे हस्बैंड की आंखों में से आंसू। बस उनको मालूम था, अंतर्यामी उनको मालूम था। किसी ने बोला था, एक जनरल कर्नल गिल थे, वो हमको लेके गए थे, उन्होंने बता दिया था कि कारगिल की लड़ाई में घायल हुआ है और ये कोमा से निकला है, वो भी आपकी ही भक्ति से, क्योंकि हमने यहाँ मैसेज कर दिया था। तो गुरुजी ने उनको ये कहा था कि उन्हों कोमा में है बच्चा, डॉक्टर कह रहे हैं नहीं नहीं जिंदा नहीं रह सकता, इसका ब्रेन नहीं चल रहा, गोलियां के छर्रे पड़े हैं। पर गुरुजी ने उस, भला हो कर्नल गिल का, जो गुरुजी के बहुत क्लोज रहे, उनको भी बहुत ब्लेस किया। तो उनको गुरुजी ने बोल दिया कि एक दफे तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर दोबारा बोला कि तुसी कह रहे हो ना कि वो कोई कर्नल का लड़का है, वो हो गया, उन्होंने आने दे दिल्ली तो मैं ब्लेस क्यों करूंगा। अब ये बातें तो हमें बाद में पता चली, अब तक सीख रहे हैं कि गुरु ने बोल दिया तो वहीं उठ गया। वो तो 3 महीने बाद ही उठ गया और दिल्ली में आ गया, और दिल्ली में गुरुजी के पास ले गए, और आज वो जिंदा है। दवाइयां जरूर चली, पर आज जो जिंदा है वो गुरुजी की वजह से जिंदा है। आज 22 साल का उसका बेटा है, उसका 15 साल का बेटा है। मैं कहती हूँ, मैं हजारों जन्म ले लूं तो ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। अगर मैं आज जिंदा हूँ, मेरी 60 साल उम्र थी, वो भी मेरे को गुरुजी ने मुझे दी उसकी, तो पूरा सत्संग है। मैं अब की बार वासन अंकल के प्लेटफॉर्म पे वो सत्संग भी सुनाऊंगी, जो 2005 में, अब 99 से मैं जाती रही, पर 2005 में गुरुजी ने मुझे जिंदगी जो दी थी, उसका तो मैं बाद में वर्णन करूंगी। मेरी तो उम्र ही 60 साल थी। अशोका होटल में एक बंदा आया था जो माथा देखता था। मैंने कहा मैं नहीं बिलीव करती। कहते कोई गुरु मिलेगा, वो शिव जी का
भक्ति करती हो आप? मैंने कहा हाँ। कहते वो शिव जी की भक्ति वाले गुरु होंगे। मैंने कहा मैं गुरुओं को नहीं मानती। कहते नहीं मिलेगा, वही आपकी जिंदगी बढ़ाएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी 60 साल से एक पल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं गुरु जी से 99 में मिली और मेरे 60 साल हो रहे थे 2005 में। मेरे को तो गिनती नहीं आती। और आज किस तरीके से मैं कहती हूँ संगत जी की, जो गौरी आंटी ने बोला है, भूल जाओ सबको, गुरु में ध्यान लगाओ। गुरु के दिया जलाते हैं, आप बैठिए, उनसे बात करिए, उनके ऑरा में रहिए। ये ऑरा जो वर्ड है ना, ये आसान नहीं है। आप बैठिए, आप गुरु जी के ऑरा में, आपको कितनी शांति मिलेगी। आपके सारे दुख हैं, गुरु जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया तो मैंने कभी नहीं मांगा अपने बेटे का, पर गुरु जी ने खुद बुला के इतना बड़ा जगदा वो किया। आज 25 साल 26 साल हो गए 99 के बाद, और आज मेरा बेटा आज भी जल पी रहा है। एंड ही इज परफेक्टली फाइन, ही इज बिकम फुल कर्नल। कोई याददाश्त की खराबी नहीं, कोई लिखाई पढ़ाई में खराबी नहीं, जबकि वो सब भूल गया था। जो गुरुजी ने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी, मेरी गोद खाली होने से बचा ली, ऐसे गुरु को मैं बल बल जाऊं, क्या करूं। इनका तो सुबह उठ के संगत जी सबसे पहले उठो, धरती माता को नमन करो, और सबसे पहले बिस्तर से कदम ही मत उठाओ जब तक ना बोलो कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन सांसों का जो गुरु शुक्राना, और जो आपने मेरे लिए किया है, हमारे लिए, गुरु परिवार के लिए कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये ऐसा परिवार बना के गए हैं कि हम भूल गए अपने परिवार को। आज हमारे परिवार जो है वो गुरु परिवार है। शुक्र है कि गुरुजी ने मेरे को बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, जो हमें बुढ़ापे में भी आके कर रहे हैं। और गुरुजी ने अंकल को भी बहुत ब्लेस किया है। वो आज 90 इयर्स के हैं। चारों तरफ उनके कमरे में गुरुजी की स्वरूप लगे हुए हैं, और गुरुजी ने उनको कोई तकलीफ नहीं दी है। पर हाँ, बुढ़े हैं, बुढ़ापा है, और वो गुरुजी क्यों नहीं उनको जाने दे रहे। कभी कभी हम कहते हैं कि ये बहुत शोर मचाते हैं, खाने पीने में दिक्कत करते हैं, तो गुरुजी से मैं ये नहीं कहती। मैं कहती हूँ गुरुजी जो आपको अच्छा लगे वो, जो आपको अच्छा लगे करो। तो इसमें भी कि भाई 90 इयर्स तक के तो गुरुजी के भक्त हैं, गुरुजी उनको वो पिछले अगले सारे कर्म कटवा के मोक्ष प्राप्त करवाएंगे। मेरा भी शायद ऐसा ही होगा, मैं नहीं जानती, मैंने तो गुरु पे छोड़ दिया। सबको ऐसे ही छोड़ना चाहिए, गुरु ही है सब कुछ। गुरु को याद करते जाओ। मंत्र जाप जो है, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। और सरेंडर करना अपनी आपस की गुरु और एक संगत के अंदर की बात होती है। गौरी आंटी की बातें सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये तो मेरी कहानी है जो ये बोल रही हैं। जो मैं संगत को बोलना चाहती हूँ, ये यही तो मैं बोलना चाहती हूँ। सब तो बोल दिया, मैं क्या बोलूं। इतनी ब्लेस्ड है। मेरे भी रेणुका नाम था। मेरा गुरुजी ने पहले दिन ही नाम हटा दिया रेणुका। तुम रेणु हो, रेणु आंटी हो। मैं बता नहीं सकती कितना प्यार मिला, कितना दुलार मिला। जैसे माँ बाप साथ साथ ले जाते हैं, कहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, किसका नाम क्या है, सब मालूम उनको। आज भी मालूम है। कहीं नहीं गए गुरुजी। बुरा जरूर लगा साथ में, बहुत लगता है, बहुत मिस भी करते हैं, रोए भी बहुत, पर गुरुजी कहीं नहीं गए। गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं। अभी 4 दिन पहले साक्षात दर्शन दिए, बैठे हुए थे, इतने सुंदर दर्शन दिए कि मैं आज 5 दिन से फूल ही नहीं समा रही। गुरुजी के पैर में मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने कहा गुरुजी, ऐसे पानी लिया मैंने अपने दुपट्टे से, उनके पैर साफ किए। तो गुरुजी कहते हैं पैर नहीं दबाएगी, क्योंकि मुझे पैर दबाने का बहुत अच्छा लगता था जब उनके दबाती थी। तो मैंने दबाए, तो मेरे को इतना अच्छा लगा जैसे मैं साक्षात गुरुजी के पैर जल मतलब सेवा कर रही हूँ, और गुरुजी को अच्छा आराम मिल रहा है। और बहुत लंबा सा सत्संग था, मुस्कुराते रहे। बस यही दर्शन है। तो यही दर्शन है। आप सत्संग में जाइए,
डिसिप्लिन रखिए। अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है तो गुरुजी के कुछ नहीं मांगते, प्यार मांगते हैं। उनको याद करना, सुबह आप शब्द लगाओ मत लगाओ, पर मैं लगाती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। और विश्वास नहीं होगा गौरी आंटी, वासन अंकल, जो मेरा पहला शब्द होता है, शायद गुरुजी ने ये कहा होगा कि पहला शब्द वही लगता है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सिमर 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 नाम जीवा। ये इससे शुरू होता है। फिर तुम आपने कितने ही शब्द हैं जो गुरुजी के टाइम के थे, मेरे पास पूरी लिस्ट है। किसी भी संगत को चाहिए तो मैं भेज सकती हूँ, आप उसको बना सकते हैं। इतने अच्छे शब्द, इतने प्यारे। हमारा ये जो जब जाते थे, हमने मांगते नहीं थे, गुरुजी अपने आप ही हमारी आत्मा को हमारे उस शब्द से समझ जाते थे। जैसे गौरी आंटी कहती हैं उन्हें पंजाबी नहीं, मैंने पंजाबी सीखी थी, तो मैं पंजाबी तो नहीं हूँ, यूपी राजस्थान से हूँ, पर वो जो शब्द होते हैं वो आज भी, और एम्पायर स्टेट में भी, वो पूरे क्लीन कर देते थे। हम हिप्नोटाइज हो जाते थे, सिर्फ गुरु को देखते रहो तो वो ऑरा था गुरु का। आज भी है। आप एक छोटी सी फोटो लगा लो, मेरे तो घर में मैं तो चाहती हूँ कि सारे में गुरुजी दिखें पूरे में, पर नहीं। अगर आप छोटी सी एक पॉकेट फोटो के सामने भी आप बैठ जाएंगी, ना भी दिया जलाएंगी, गुरुजी उसमें भी बहुत खुश हैं। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी को प्यार से आप जल देंगी, आप गुरुजी का भोग लगा देंगे, आप एक फ्रूट भी रख देंगी, आप जो गुरुजी को पसंद है। जैसे गोलगप्पे मैं हमेशा रखती हूँ कि मेरे अंकल खाना खाना बंद कर दिया है, तो हमने कहा चलो पानी नहीं पीते तो गोलगप्पे ही खिलाएं। तो रोज 7-8 बजे गोलगप्पे पे जिंदा है, मिठाई खाएंगे, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं। पर गुरुजी ने उनको अच्छा रखा हुआ है, उनकी कोई याददाश्त नहीं गई और गुरुजी की पूजा में है। तो संगत जी, गौरी आंटी ने जिस तरह सुनाया कि कर्म कटने हैं, दुख सुख तो आएगा। गुरुजी ने बहुत लोगों को उम्र भी दी। एक सत्संग है, जो एक अंकल आया करते थे, वो कहते थे मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत दर्द होती है, गुरुजी उन्हें ब्लेस करो, कुछ उम्र दो। उन्होंने कहा कि ये जो इसको जो तकलीफ होती है, इसके बहुत पुराने कर्म है, इसको होने दे, नहीं तो इसको अगर मैं जिंदा कर दूंगा तो ये बहुत कर्म काटेगी। इसको जो पेट का दर्द है वो 2 साल तक होने दे, 4 साल में इसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 4 साल के बाद वो आंटी चली गई और गुरुजी के पास। सो गुरुजी से क्या मांगना, गुरुजी को के हो जाओ, बस वही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, सारे गुरु परिवार के लिए। बस गुरुजी सब है। वासन अंकल इतनी अच्छी सेवा करते हैं कि सब संगत को सुनने को मिलता है। गौरी आंटी को सुनते हैं, जो भी हो, नया पुराना कोई नहीं है। और बस गुरुजी के बस मगन रहो, गुरुजी को याद करो, उनके औरा में रहो, गौरी आंटी ने जैसा बताया। और जिंदगी तो भगवान लिखवा के लाता है, पर गुरुजी ने, ये हमारे पूर्ण गुरु हैं। पता नहीं सहस्त्रों साल हम तो पता नहीं कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर ये गुरु हमेशा रहेंगे, ये दिव्य शक्ति हमेशा रहेगी। ऐसा मंदिर कभी किसी का नहीं हो जिसमें 16 लिंगों का पूरा वो है। कोई एंटर भी कर जाए, जो एक दफे लंगर खा जाए, पूरा परिवार जो है ब्लेस हो जाता है। कितना है, भक्ति रखो, फेथ रखो गुरुजी के। अरे जाके तो देखो, गुरुजी को अपना बना के तो देखो, गुरुजी सब देंगे, आपकी तकलीफें भी दूर करेंगे। मुझे भी तकलीफ होती है, मैं गुरुजी से कहती हूँ, मैं गुरुजी तकलीफ तो बहुत हो रही है, पर हो सकता है गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोई ना कोई कर्म कटवा रहे हैं आप, और 2 दिन बाद ठीक हो जाती हूँ। हो गए ना, कर्म कट गए। 90% गुरुजी लेते हैं, 10% हम तुमको भुगतना पड़ेगा, वो भी हमसे नहीं भुगता जाता, उसमें भी हम रोते हैं। तो और गुरु क्या करें। कारगिल की लड़ाई में गुरुजी के पीठ के ऊपर कितने निशान थे, कितने बच्चों को बचाया गुरु ने, कितना वो किया। करोड़ों का कैंसर, करोड़ों का लिया, किसी ने गुरुजी से नहीं मांगा। गुरुजी को सब पता था कि ये क्यों आया, मैंने नहीं मांगा, पर गुरुजी ने मुझे कल्याण करके मुझे जाती रही और मुझे कहा कल्याण तेरे बेटा ठीक हो जाएगा, जाओ। 2001 में
वो ड्यूटी करेगा। और ड्यूटी की, दिल्ली में ही ड्यूटी लगवा दी। धीरे धीरे करके उसकी याददाश्त सवाई, पंजाब चला गया, आज नौकरी कर रहा है। दिसंबर में वो रिटायर होएगा। और गुरुजी का जल पीता सुबह सुबह। गुरुजी की भक्ति, मेरी बहू रानी भी मिली थी जब 6 महीने पहले शादी हुई थी, मेहंदी भी नहीं तुरी थी। और गुरुजी की भक्ति में वो इतनी लीन है, वो भी बहुत लीन है। सो हम तो कहते हैं, गुरु भगवान आप बस हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, सबका भला करना। जैसे आंटी ने कहा कि अपने घर में जो काम करने वाले हैं उनका भी दुख दर्द देखो, दान पुण्य जितना हो गुप्त दान करो, सबका भला करो। कहते थे बंदा बनो, अच्छा बंदा बनो। तो गुरु जी ने तो हम लोगों को अच्छा बंदा बना दिया है। बस बंदा बना के ही रखें और सबको ब्लेस करें। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गौरी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू आंटी। जय गुरु जी आंटी। संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा सब बोलते हैं कि गुरु जी 90% ले लेते हैं, पर हम क्यों गुरु जी को बोले कि वो 90% ले लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। हमें समझ आ गई है कि गुरु जी भगवान है, हमको ये प्रे करना चाहिए, गुरु जी हम अपने कर्म खुद भुगतेंगे, आप अपनी एनर्जी हम पे और मत वेस्ट करो। गुरु जी की कितनी एनर्जी लगती है, बिल्कुल कितनी energy। हम तो, आप ये चीज मेरे से गलती से हो गई कि उस वक्त कहते थे गुरुजी। नहीं नहीं, आपने पर जो हम कहा गुरुजी सही को, कहा, ये हर हमने आदमी गुरुजी सोचता है को कि कितनी 90% तकलीफ गुरु दी जी है। लेंगे। गुरुजी ने अपने ऊपर कितनी तकलीफ ली है। हम 10% क्यों, हमें तो हाँ अगर जी, देना है तो हम 100% भुगतने को ऑफ तैयार। कोर्स। हम अपने ओल्ड पेरेंट्स को कभी बिल्कुल भी बिल्कुल बोलेंगे, गौरी हम आंटी, कभी खुश नहीं थैंक यू होंगे फॉर कि करेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। हम बहुत, कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे कि आप हमारी सफरिंग लो या आप हमारी तरफ बिल्कुल नहीं, से। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे भी कि नहीं। हमारी प्रॉब्लम उनको पता भी ना चले। तो गुरुजी बिल्कुल हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स है, भगवान है। उनको बिल्कुल यूनिवर्स चलाना है, हमको कभी गुरुजी को नहीं बोलना चाहिए कि गुरुजी अपनी हमारी तकलीफ आप ले लो, प्लीज कम नहीं नहीं, कर दो। बिल्कुल नहीं, कम बिल्कुल नहीं। करवाने का मतलब ये है कि नहीं, वो उस दिन उनकी उस एनर्जी टाइम जाती गुरुजी है। कहा करते थे ऐसा, तो वो मैंने बोल दिया। पर हमने कभी नहीं हाँ चाहा जी कि हाँ जी, मैं गुरुजी अपना ये नहीं बोल कष्ट रही, लें। मैं ये तो सभी लोग बोलते हैं कि 90% गुरुजी ले लेते हैं, पर क्यों? आप प्रे करना क्यों ही लें, क्यों चीज के लें, हाँ। लिए। बिल्कुल दूसरी नहीं। बात मैं ये कहूंगी कि उषा भाटिया को एक बार गुरुजी ने बोला था कि मेरे लिए प्रे किया कर। तो इसका मतलब हमें पहली बार लाइफ में समझ में आई, कई जन्म हमारे पहले निकल चुके होंगे, कि भगवान को भी हमारी प्रेयर की जरूरत है। बिल्कुल। अब हमारी बारी है कि हम गुरुजी के लिए प्रे हाँ करें। गुरुजी की, हाँ गुरुजी बिल्कुल। की मदर गुरुजी कहते थे, मैंने सुना 2001 में गुरुजी को कहते कि मेरे लिए प्रे करो। प्रे इसलिए 2001 में कहते थे गुरुजी कि वो की मदर आती थी। कितने कष्ट सहते थे वो हमारे। गुरुजी की मदर वहां पे 2001 में आती थी। दिल्ली में गुरुजी ने अपने पास रखा हुआ था और मैंने ज्वाइन किया 2001 अगस्त में। उससे पहले वो शरीर छोड़ चुकी थी। तो जब वो हाँ जी। सत्संग में बैठती थी पीछे एम्पायर स्टेट में, मुझे बहुत हाँ, संगत ने कहा हुआ है कि वो हमेशा सबको बोलती थी, आसपास जो बैठता था, कि इसकी उम्र बहुत थोड़ी है, इसके लिए प्रे किया करो, गुरु जी के लिए। तो आप अच्छा, देखिए उनकी मदर की भी कितनी स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगी, जिनके जिनके से भगवान आए। भगवान आए, हाँ। तो आप सोचो उनको अच्छा, जब मैंने देखा बुढ़ापा। तो था उनको बैठे हुए, पर मैंने हाँ जी, ये मैंने बात नहीं आज देखा, पहली दफा सुनी है, ये बात। मैंने नहीं देखा आंटी। अच्छा। तो देखिए, इसलिए ये सबसे बड़ा मैसेज है कि अब हमको अपने लिए ना करके भगवान को, गुरु जी के लिए प्रे करना चाहिए। उनको भी यूनिवर्स चलाना है, उनको भी एनर्जी की जरूरत है। हर आदमी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है गुरु जी से, इतनी छोटी छोटी बातों में रखेगा। बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल ने बिल्कुल दुनिया बना दी है थ्योरी ऑफ कर्मा पे, जैसा कर्म करोगे उसका आपको कर्म भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटर है सही हम कह रही। आगे से अपने कर्मों पे बहुत ध्यान रखें और किसी को परेशान न करें। और बिल्कुल जो सही है कहा आपने, उसको एक्सेप्ट, बिल्कुल गौरियान। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके हम उसको भुगत लें। और यही हाँ हमको आगे मैसेज भी पास करना चाहिए। बिल्कुल सही हाँ कह रही हैं आप। हाँ। और देखिए कभी कभी पेन इतना सीवियर होता है, फैमिली में इतनी अशांति होती है कि आदमी प्रे भी नहीं कर सकता, पाठ भी नहीं हाँ कर सकता, मंत्र जाप भी नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में आपको कुछ भी ना करो, चाहे दिया भी ना जलाओ, पर दिन में गुरु जी की फोटो के पास जरूर 5 मिनट बैठ के, बिल्कुल जब बैठना भी आपको चाहिए। टाइम मिले, और आप यही बोलो गुरु जी से कि गुरु जी पाठ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी परेशान हूँ, जब शांत हो जाऊंगी तब पाठ करूंगी। धीरे गुरु जी धीरे को सब आराम मालूम है। में बैठोगे, उनकी एनर्जी से ही आप शांत हो जाओगे। बिल्कुल। इसलिए मांगना छोड़ दो गुरु जी से, क्योंकि मांगना तो अ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्लो करने के बराबर है। कलयुग में लाइफ इज सो डिफिकल्ट कि हम चाहते हैं कि हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाए। और
ये जो छोटी बिल्कुल छोटी सही। चीजें, एंगर को कंट्रोल करना, टॉलरेंस, ये तो सब आपको सीखना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे अपने आप पे वर्क करना शुरू करें, इंस्टेड ऑफ कि गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो। थोड़ा प्रे करोगे तो आप में मेंटल स्ट्रेंथ आ जाएगी अपने आप को कंट्रोल करने की। आप मुझे देखिए कि 90 इयर्स के स्केलेटन है मेरे हस्बैंड, आराम से वो अटेंडेंट संभाल रहा है, पर मैंने गुरुजी को ये नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी आप जैसा चाहें वैसा रखो, और हाँ अच्छे जी, रखा हुआ है, बहुत अच्छा रखा हुआ है। हाँ हम जी, अपनी सेवा बिल्कुल। कर रहे हैं। देखिए फकीर में लिखा हुआ है, और वैसे भी मैं कहती हूँ ना, गुरुजी ने ये हम जाने जो ह्यूमन लाइफ है बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्मा, और बिल्कुल देखिए फकीर में भी एक बार लिखा है कि गुरु गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। जैसे गुरुजी कहते थे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा करो, वैसे ही हमको फकीर जरूर पढ़नी चाहिए। और बिल्कुल। आजकल लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड और ये सब बुक रीडिंग शुरू हो गई है, तो लोगों को थोड़ी सी अब थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा हुआ समझ है, आने लगी है। ये सुरेश अंकल ने बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए वेरी नाइस। दूसरी बात ये कि देखिए सुरेश वासन अंकल भी गुरुजी से नहीं मिले, वो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उनके ऊपर। कितनी बड़ी सेवा, ये ओ माय कितनी बड़ी गॉड, ब्लेसिंग है। बहुत लाइट बड़ी ऑफ डिविनिटी ब्लेसिंग भी है। अंकल ने बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करवा दी है। आई नो, आई हिंदी में नो। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उन्होंने करवाई, ये सब सेवा उनको मिली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नई संगत पे ब्लेसिंग्स कम है, पुरानी पे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ऐसा पुरानी कुछ नई भी संगत नहीं जैसा है, कुछ नहीं है और यहाँ। ये सब गुरुजी करवा रहे हैं उनसे, हाँ जी, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं, हाँ जी। सब और गुरुजी अगर करवा रहे हैं। आपकी एज कम है और थोड़ी बहुत सफरिंग है आपकी लाइफ में, तो थैंक यू बोलो कि गुरुजी ने आपकी अर्ली स्टेज में सब कटवा रहे हैं। एक लड़की का बिल्कुल। सत्संग मैंने सुना था, वो लड़की का नाम है श्रीनाथ भारद्वाज। अच्छा। श्रीनाथ भारद्वाज, उसका सत्संग यूट्यूब में आप सुनना। उसकी तो शादी होते ही बहुत कुछ नेगेटिव हो गया, उसका क्या स्कूल का पूरा बॉयफ्रेंड स्पेलिंग था। क्या है गौरी? जी, स्पेलिंग क्या है, श्रेणा क्या है, क्या बताओ। SHRANAAZ, मैं आपको भेज दूंगी उसका एक सत्संग। अच्छा, ये मेरे को श्रीनाथ भेज देना प्लीज। भारद्वाज, उसका बॉयफ्रेंड हाँ। था स्कूल का, और उसकी शादी हुई, उसके बाद उसने खुद ये सत्संग हमारे प्लेटफॉर्म पे भी सुनाया हुआ है। और कोविड में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, यंग बॉय। उसने ओ। अपने इसके लिए घर भी बनाया था, वो घर इन लॉज ने ले लिया, इसको भी घर से निकाल दिया, पेरेंट्स के पास आ गई। और हम्म। वेरी वेल कनेक्टेड गुरु टू गुरु जी, कि पूरी फैमिली उसके थ्रू ब्लेस हो जाएगी, पूरी फैमिली उसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगी। और गुरु जी ने बिल्कुल सफरिंग देखी कितनी कम एज में काट दी। बिल्कुल। इनकी सफरिंग बहुत अर्ली एज में कट जाती, दे आर रियली ब्लेस्ड कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे वैसे ही आ जाते। और हमें तो अब कोई स्पिरिचुअल पाथ सही। फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें तो हाँ, गुरु जी मिल गए, बस गुरु जी को फॉलो करने की और जरूरत है। क्या चाहिए, बस गुरुजी मिल गए। बिल्कुल। हमारे लिए तो हमें यही किसी है रास्ते की सबसे जरूरत बड़ी नहीं, वो बात। शब्द है ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के हाँ, निशान मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल बस सही कह हमें रहे हो। उसी पे चलना है, और बहुत सिंपल रास्ता गुरु जी ने सेट किया है कि पाठ करो। और देखो ब्रह्म में भी एम्पायर लिखा हुआ स्टेट है। में क्या जी, टाइम रखा था, रात के 7:30 बजे का, जिससे अपने बच्चों को सब कुछ सेटल करके सब संगत आए। यस, ये भी गुरुजी ने सारा सोचा। हाँ उनको जी। हर हर लोग की परवाह थी, कोई पंजाब से बहुत आया कैसे प्रैक्टिकल है जाएगा। गुरु जी हमारे, बहुत प्रैक्टिकल हैं। देखिए हर तो बहुत प्रैक्टिकल। सब मंदिर सुबह खुलते हैं। गुरु जी ने शुरू से ये ट्रेंड सेट किया है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होके मेरे पास आओ और फिर घर जाके सो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतना टाइम तो गुरु जी के लिए निकाल ही सकते हैं कि किसी भी टाइम दिन में 3-4 बार। बहुत ही पेनफुल लाइफ है आपकी, बोलो गुरु जी मैं नहीं कर सकती कुछ भी, बस मैं आपके पास बैठी हूँ। रोज बैठे रहो, रो भी तो गुरु जी के सामने जाके रो, पर ये मत बोलो कि गुरु जी ठीक कर दो। अब जैसे मैं घर में हूँ, अब मुझे जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो अगर मैंने किसी फैमिली मेंबर को कह दिया, वो कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी तो हमारे दिल में हैं। मैंने कहा अगर इतना कह भी दिया तो उसमें क्या हर्ज है गुरुजी। देखिए धीरे धीरे ना, आपके जैसे टाइम जाएगा ना, आपको गुरुजी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते जाते हैं। पहले मैं मुझे गुरुजी ने एक बारी कहा था कि तू ऑफिस से आया कर। हाँ गुरुजी मुझे ऑफिस जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा गुरुजी मैं हाउस वाइफ हूँ, वहाँ पे तो बाकी इंजीनियर्स लगे हैं, तो मैं क्या करूंगी ऑफिस जाके। जब हाँ गुरु की हाँ बात काट दोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। हाँ ऐसे ना मैं जाती थी, कभी नहीं जाती थी, कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी। तो जाते जाते गुरुजी ने मुझे एक दिन फिर से कहा, हम्म, 2006 2007 अप्रैल में, ऑफिस हाँ जाया कर 2 घंटे के लिए। तो मैंने जाना शुरू किया, वो भी मैं जब वहां होती थी तो जाती थी।
तो लेकिन जब मैं घर से निकलती थी मैं कहती थी, मैं गुरुजी आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आप मुझे ऑफिस भेज रहे हो ना, अब बैठो अकेले यहाँ पे। गुरुजी का एक रूम में तो दिया चलता है, उसमें मैं कहती थी बैठो अब आप अकेले अकेले यहाँ पे सारा दिन, मैं तो जा रही हूँ। और आती थी ना तो मैं नीचे ही बैठ जाती थी, ऊपर गुरुजी को माथा टेकने भी नहीं जाती थी। ओके, मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठ जाती थी और एक टीवी सीरियल लगा लेती थी। वो क्राइम सीरियल था। ये बहुत हाँ इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए जरूर। तो हाँ। मैं 5 बजे आ जाती थी, 3 बजे जाती थी, 1:30 बजे जाती थी, 5 बजे घर आ जाती थी। मेरे हस्बैंड आते थे 7, 7:30 बजे। तो ऐसे अच्छा। करके क्या हुआ कि एक दिन अब लेकिन जब मैं बीमार हुई तो वो हाँ जो क्राइम सीरियल में देखती थी उसका एक सीन मेरी आंखों से फ्लैश हो गया, विजन में। एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टूड कि गुरुजी मना कर रहे हैं कि नेगेटिव सीरियल नहीं देखने चाहिए। और जिस दिन से मैं हॉस्पिटल में आई हूँ आज तक, मेरे हस्बैंड जब बैठे होते हैं टीवी देखते तो मैं 10-15 मिनट देखती हूँ, और जैसे ही क्राइम सीन स्टार्ट होता है मैं सब छोड़ के चली जाती हूँ। तो ये भी एक मैसेज है कि नेगेटिव सीरियल्स नहीं देखने चाहिए कभी भी। और अब मैं जब ऑफिस जाती हूँ, बीमारी के हम्म। बाद से जब मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी आपने तो दुनिया चलानी, यूनिवर्स चलाना है, आप बैठो, मैं आपके आशीर्वाद के साथ ऑफिस जाके आती हूँ। ऐसे गुरुजी धीरे धीरे ना आपकी मेंटालिटी सब चेंज कर देते हैं, आपको सिखा देते हैं सब कुछ। तो आपको अच्छा लगा ना जो गुरुजी ने बोला कि हाँ आप जी। ऑफिस जाया करो, नहीं, उससे गुरुजी फायदा ने जिस हुआ ना। रीजन से बोला है तो गुरुजी को पता है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हाउस वाइफ सारा दिन दोपहर को सोती रहती है, गुरुजी को पता है घर से नहीं निकलेगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे घर में रहना, आज की डेट में लोगों को बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी को तो घूमना तो बहुत अच्छा गुरुजी को लगता पता था। है घर से बाहर निकलेगी नहीं, तो गुरुजी ने कहा 2 घंटा ऑफिस जाके आया कर। मैं जाती हूँ। हाँ, अच्छा करते हैं। हाँ जी, तो देखो गुरुजी ने मैं बहुत कुछ सिखाया, फिर मुझे ऑफिस बहुत जाके मैं सिखाया बहुत कुछ आपको। सीखा। हाँ जी। हम्म। तो इसलिए ना आप गुरुजी पे छोड़ दो सब कुछ, जो गुरुजी ने कहा। कब कहा था गुरुजी ने? मुझे 2007 में कहा था, पहले तो 4 में कहा था, उसके बाद में अब मैं रेगुलरली जाती हूँ 2019 के बाद से, जब से मैं बीमार हुई, कोविड के बाद से। तो गुरुजी ने हम्म। जो कहा वो आपको करना ही करना है। और जब आप ये पाठ करोगे, गुरुजी के पास बैठोगे, तो गुरुजी आपको थॉट्स देते रहेंगे, बिल्कुल देते हैं। टेलीपैथी से आपसे बात करते रहेंगे, आपसे जो करवाना है वो करवाते रहेंगे। आपको टेलीपैथी से ही होता है, सारा कुछ जी, पता चल आपको जाता है। गुरुजी की साइंस समझ में आने लगते हैं। साइंस समझ में आती है, हाँ, बिल्कुल आती है देखिए आंटी, आप मुझे बहुत भी दुख आती है। में हो तो मत करो भक्ति, पर गुरु जी के पास बैठो हम्म। जरूर। रो तो भी गुरु जी के पास बैठ बैठ के रो कि गुरु बिल्कुल जी मेरे से बिल्कुल। नहीं हो रहा, ना पाठ हो रहा है, ना ना मैं नहीं ना होता। शब्द सुन सकती हूँ, पर बस मैं बैठी हूँ आपके पास। बट उनके ऑरा में बैठोगे ना, ग्रेजुअली उनकी एनर्जी विल वर्क ऑन यू। बिल्कुल ठीक कह हाँ, रही हैं, ये संगत तो को आपकी सुनना चाहिए सब। ऑरा और में सुन रहना रही है इज संगत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और तो वो आप जैसे भी जैसे रहो। कह रही है ना ऑफिस की बात, मैं 99 की बात है, 2000 की बात है। मैं गुरुजी के पास बैठी थी, कहते हैं आंटी तुसी जाते हो घर, सीधा जाया करो, कहीं ना रुकना। ऐसे करके बोला कि यहाँ से जब जाते हो तो सीधे जाया करो। मैं तो डर गई, मैंने कहा अरे मैं तो पानी भी ले लेती हूँ नीचे से, बिस्लरी की बोतल वाले पे भी फ्रूट भी खरीद लेती हूँ। मैं इतनी पक्की हो गई कि मैं सीधी आती थी, और मेरे नीचे पड़ोस में लेडी थी, कहते हैं आप बड़ी सजी धजी हैं, कहाँ से आई हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, जैसा गुरुजी ने कहा सीधे घर पहुंचो, ब्लेसिंग पहुंचती है। जब मैं दोबारा मिलती थी सुबह तो मैं कहती थी सॉरी जी, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि मैं वहां से आई हूँ, मैं किससे बात नहीं करूंगी, अब आप दूसरे दिन बात करो। आई वॉज सो स्ट्रिक्ट हो गई थी मैं गुरुजी की बातों से। हम्म। और बात सही तो है कि उनके पास से आ रहे हैं, उनका जो ब्लेसिंग है उसको घर में लाओ ना अपने पास, साथ साथ लेते आओ। और तो आंटी, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो बहुत ही सिंपल वे में जाती थी, कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी, क्योंकि अंकल यहाँ पे रहते थे। और मैं जब दिल्ली जाती थी तो अकेली जाती थी, मोस्ट ऑफ तो अंकल तो ज्वेलरी थे। पहन के तो कोई भी नहीं आता था आंटी। नहीं, पर थोड़ी बहुत तो पहनते थे ना, मैं तो वो भी नहीं पहनती थी क्योंकि मैं कान में आध्यात्मिक भी नहीं, कान में भी थी। नहीं। बस एक कान में पहनती थी, क्योंकि ना बस फिर मैं भी मुझे, कान में ही पहनती थी। बिकॉज मैं रात को आती थी ना, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, 4 बजे, तो मुझे बहुत हम्म। डर लगता था। पहले मेरा घर वसंत कुंज में था, आपको पता है ना, वसंत में ओल्ड पीपल्स के मर्डर हो रहे थे। हाँ हो रहे थे, मैं भी हाँ, तो बसंत कुंज फिर में मुझे हूँ। बहुत डर लगता था इसलिए कि, और मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे था, तो मुझे मैं भी बहुत डर बसंत कुंज लगता में था। हूँ। बट फिर भी मैं जाती थी गुरुजी के पास, और रात को आती थी हाँ लेट हाँ। में। और बहुत ही सिंपल तरीके से जाती थी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मैं बाहर रहती हूँ। मैं से किसी से बात भी नहीं करती थी, गुरुजी कहते थे ना किसी से बात मत किया करो, तो हाँ। किसी से बात नहीं करती थी। 90% लोगों को नहीं पता था कि मैं बाहर रहती हूँ। तो हम्म। एंड ऑफ हिज लाइफ गुरुजी ने एक दिन मुझे बुला के कहा,
कार्टियर का चश्मा खरीद, नवी गड्डी खरीद और नवा मोबाइल खरीद। अच्छा। हाँ देखिए, गुरु जी को पता था कि नहीं तो सिंपल लोगों को क्या होता है, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती, भगवान तो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक बारी विंटर में दिसंबर में एक अंकल आए आंटी थे। हम तो नहीं करते किसी की परवाह, हमारे पास गाड़ी है नहीं है, आई एम नॉट बॉदर्ड, जैसे घर में रह रहे हैं, कभी कभी नहीं सोचा कि उसका बहुत महल बनाए तो मेरा भी बन जाए, बड़ी एक संतुष्टि बारी है। आंटी, एक बारी क्या हुआ, नहीं मैं सारी संगत को ही सुना रही हूँ, क्या आंटी को रही हूँ, क्योंकि आंटी से डायरेक्ट में इंटरेक्ट कर रही हूँ इसलिए। एक बार एक अंकल आए, दिसंबर की बात है, एंड ऑफ दिसंबर में। वो में अंकल मेरे हाँ आगे जी। थे, हम्म। और अंकल ओवरकोट पहने हुए थे और शायद हैट पहने हुए थे, मुझे पता नहीं, पर ओवरकोट तो जरूर पहने थे, मोटा सा कोट पहने हुए थे बहुत सारा। और गुरु हम्म। जी ने जैसे ही उनको देखा, अब जैसे न्यूयॉर्क में ठंड पड़ती है ऐसे तो नहीं पड़ती ना दिल्ली में, और उस टाइम इतनी ठंड थी भी नहीं। तो गुरु जी हम्म। ने उनको बोला, उतार कोट उतार, जल्दी से पहले कोट उतार। खड़े खड़े गुरु जी ने कोट उतरवाया और उसको कहा, जो है वो लग तो सही। और मैं ये उनका कब की नाम बात नहीं है? पता, लेकिन मैंने उनकी फोटो बहुत बारी देखी है, मैंने यूट्यूब में भी देखी है बहुत बारी, मैंने लोग फोटो भेजते हैं उसमें भी देखी है वो अंकल की फोटो। तो जैसे ही वो फोटो देखती मुझे याद आ जाती गुरु जी ने इन अंकल को बोला था। उसी टाइम कोट उतारा, गुरु जी का कोट उतारा भी उतारा। तो इसलिए ये ना, कौन से ईयर की बात है? ये है बस जब हम गुरु जी के पास जाते थे दिसंबर में, अराउंड 5-6 की। हाँ। हाँ, अभी मैं उनकी बहुत बार फोटो देखती हूँ जगह जगह ना, तो मुझे समझ आती है, क्या याद आ जाती है कि हाँ ये थे। एक तो ये भी है कि आप अंकल गुरु जी के पास अगर ये सोच के जाओगे कि वहां पे कुछ काम हो जाएगा आपका, अगर आप गुरु जी के दर्शन के अलावा किसी भी इंटेंशन से गए तो उसका कोई फायदा नहीं, फिर मंदिर जाने का आपको कोई ये फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो एक बात बताऊं, मुझे एक लेडी मिली थी, उसको कहीं से पता चल गया था, क्योंकि मेनका गांधी एक बार यहाँ आई थी, तो एक बार उसने कह दिया था, शायद किसी को बताया था। तो वो लेडी जब भी लाइन में लगती थी, उनका बहुत बड़े शोरूम से दिल्ली के डिफरेंट एरियाज में, इतने हम्म। पैसे। तो मुझे कहती थी, जब भी वो मुझे देखती थी कहती थी आके मेरे पास, मुझे ना आपसे एक काम है। मैं कहती थी क्या अच्छा, बोलती? मुझे आपसे एक काम है। मैं ओहो। कहती थी अच्छा। इससे आगे मैंने उनसे कभी बात नहीं की। गुरु जी के फिजिकली जाने के बाद वो मुझे मिली, उषा भाटिया के घर में सत्संग था। आई थिंक ये हाँ बात है 2008 बिगनिंग की। हाँ हाँ। तो मुझे कहती है, मैंने उनको देखा उस दिन। तो मैंने कहा आंटी, अब जब मुझे मिलते बोलती हो मुझे आपसे काम है, क्या काम है आपको, जरा आज बताओ मुझे। तो मुझे उन्होंने कहा, मुझे ना, जहाँ आप रहते हो, मैं ना जगह का नाम नहीं बताऊंगी, वहां एक शोरूम खोलना है साड़ी का। ओ माय देखिए, गॉड। हम्म। आप सोचिए वो क्या ब्लेसिंग उन्होंने सत्संग में ली होगी। गुरु जी को तो पता ही था ये लेडी हमेशा मेरे से क्या चाहती है। तो मैंने उनको एक सेंटेंस में जवाब दिया, मैंने कहा मैं ऐसी बातें सत्संग में नहीं करती, आप मेरे हस्बैंड से बात करना है इस बिजनेस के बारे में। फिर वो मुझे कभी मिली नहीं, उसके बाद मिली नहीं। आदमी इंसान को गुरु जी के पास आके क्लियर होना चाहिए कि आपको सिर्फ गुरु जी और गुरु जी पे फोकस रखना है। जब हमारा वहाँ पे सत्संग स्टार्ट हो गया, जहाँ हम रहते हैं, हमने सत्संग स्टार्ट किया। फिर एक लेडी का मेरे पास थोड़े टाइम बाद, उनको पता चला कि गुरु जी ने मुझे घर दिलवाया हुआ था सत्संग के लिए, काफी बड़ा घर है वो। तो हम्म। वो आई थी, वो एक बारी वहां पे जाम रहते हैं एक लेडी। तो बाद में उनका फोन है मेरे पास एक दिन, जब वो वापस आ गई, कि मुझे आपसे एक काम है। मैंने कहा क्या काम है। बोली हम्म। हमें एग्जीबिशन लगानी है। क्या मैं लगानी है? डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी को डिस्क्लोज करना मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी की बातें। अच्छा ठीक तो है। मैंने कहा अच्छा, क्या बिजनेस करना है आपको। तो वो बहुत बड़ा बिजनेस था। तो मैंने कहा हम्म। आप कहाँ जगह, कहती आपके घर में इतना बड़ा हॉल है, ऐसे क्या आपका टर्न ओवर, मतलब उसका मतलब ये था कि मैं आपको कमीशन दे दूंगी। शी मेंट दैट, हाँ बिजनेस में इमीडिएटली। देखो गुरु जी की जब कृपा होती है आपके मुंह से गुरु जी बोलते हैं। मैंने कहा मेरे को इसको सत्संग हॉल गुरु जी ने बनाया है, इसको बिजनेस सेंटर नहीं बनाने का। ऐसे मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, ये बिजनेस सेंटर नहीं बनेगी जगह। मैंने कहा मुझे नहीं करना बिजनेस कोई भी। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा इंडियंस जो है ना, वो हर चीज इंडिया से खरीदते हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो बाहर से खरीदते हैं। मैंने कहा आपका बिजनेस चले ना चले, हमको ये सब काम नहीं करने का सत्संग में। तो गुरु जी की बड़ी ग्रेस रहती कि गुरु जी मुझसे कहलवा देते, फिर मुझे अफसोस भी होता है कि भाई मैंने तो कैसे कह दिया। बट हाँ, कभी कभी हो जाता है कितनी बारी, बट कहते हैं ना, मैं डायरेक्ट कभी कभी बहुत लोगों को बोल देती हूँ कुछ कुछ। पर आंटी ये गुरुजी बुलवाते हैं? हाँ जी।
मैंने उनको क्लियर आप कुछ नहीं बोलती हैं। अब मैं सत्संग किया है मैंने 1-1 घंटे, मुझे यही नहीं मालूम कि मैंने किया क्या। बाद में अपना सत्संग खुद सुनती हूँ। हाँ, बेटर है कि इतना ड्रैग करो किसी चीज को ना, आपका फोकस गुरुजी पे रहना चाहिए। और बिल्कुल रहना चाहिए। और देखिए संगत जी, मैं एक बात बात मैंने बहुत गुरुजी को कोई बात नहीं मानी। गुरुजी ने मुझे जो जो करने को कहा, कुछ देने की तो बात बहुत दूर की बात थी, फिर भी गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ क्योंकि मेरा ध्यान गुरुजी में रहता था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास भी बैठती थी तो मेरी आईज गुरुजी पे फोकस्ड रहती थी। मैं ना लेफ्ट देखती थी ना राइट। और एक ही बारी मैंने पूरे सत्संग हॉल में आंखें बंद की तो इमीडिएटली, क्योंकि मैं देखती थी काफी लोगों की आंखें बंद होती थी, तो एकदम से सिंगला अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा, भगवान सामने बैठे और आंखें बंद करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। उस दिन के बाद मैंने कभी आंखें बंद नहीं की, मैं ओपन आई मेडिटेशन करती थी और मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को देखती रहती मुझे तो थी। याद नहीं है, मैं तो हमेशा गुरुजी को ही देखती रहती थी हाँ, कि कुछ नहीं कोई करती। मैं जब भी हाँ। एंटर होती थी गुरुजी के जा सामने जाके आगे जाके बैठ जा। तो बहुत हम्म। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने मुझे, बहुत बड़ी बड़ी दी हैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं डिजर्व भी नहीं करती, बट बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। गौरी आंटी, ये जो आप सत्संग कर रही हैं और गुरुजी की बातें सुना रही हैं और गुरुजी का, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे दुनिया में बड़ी ब्लेसिंग है। देखिए, मैं इसकी बड़ी बात बताऊं आपको कि मैंने 10 साल सत्संग किया अपने घर में, लेकिन मैं जी। कभी सत्संग सुनाती नहीं थी। मुझे लगता था क्या सुनाऊं, कुछ तो है नहीं। और एक दिन बीमारी के बाद 2019 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे और मैं बीमार थी कोमा से आने के बाद, एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी तो गुरुजी ने कहा, सत्संग किया कर। और मैंने सोचा सत्संग तो कर रही हूँ, अब कितना सत्संग करूं, रोज रोज थोड़ी सत्संग कर सकती हूँ, रोज रोज आप सत्संग थोड़ी होस्ट कर सकते हो फैमिली लाइफ में। तो मुझे लगा क्या करूं मैं सत्संग, तो मुझे समझ नहीं आई गुरुजी की बात। फिर मुझे समझ में आई, आप गुरुजी सत्संग ने करें, कहा ये बोला गुरुजी ने कि आप सत्संग सुनाओ। नहीं, हाँ, तब मुझे समझ आई कि गुरुजी कह रहे तू सत्संग शेयर किया कर। ये बिल्कुल बात से बिल्कुल। मैंने सत्संग शेयरिंग शुरू की है। मैंने भी रिसेंटली शुरू की, 2-3 साल हुए, उससे पहले मैं नहीं करती थी सत्संग। तो मैं मैं वही 16 तक करती नहीं हूँ। किया, 16 में मेरे को हाँ जी, गुरुजी ने दर्शन दिए सत्संग करो, तब मैंने शुरू किया। मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं थोड़ा डरती तो हूँ गुरुजी से आज भी। मैंने कहा गुरुजी जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। गुरुजी ने, इसीलिए मैं लाइव सत्संग नहीं करती कभी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मना किया हुआ है। मीडिया तो पहले मना ही था, पर हाँ इसके जी, बाद गुरुजी ने हाँ कर दी, गुरुजी ने हाँ कर दी। नहीं, मैंने तो बहुत पूछा था, गुरुजी ने मना कर दिया। भी रिसेंटली भी मुझे मना किया तो मैं नहीं करती। बट हाँ, जब मुझे गुरुजी ने कहा सत्संग किया कर, तब से मैंने फिर सत्संग शेयरिंग स्टार्ट किया है। बहुत बट अच्छा कहते बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है और सब पे है। ऐसा मत सोचो कि हम सत्संग सुना रहे हैं तो हैं। हम भी, बिल्कुल। आज हम सुना रहे हैं कल आप लोग सुनाओगे, ऐसे ही सुनाओगे, हमसे भी अच्छा सत्संग जो सुनाओगे। सुनते हैं ना वो उस पे भी ब्लेसिंग है। जी, अब सब पे ब्लेसिंग। एक ही चीज को गुरुजी बार बार सुनवाते थे। जी, जरा सी थोड़ी सी ब्लेसिंग हुई थी, ये तो कारगिल वाली तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब ब्लेसिंग। कितनी ब्लेसिंग, मेरे हस्बैंड को 3 दफा जिंदा किया, मुझे जिंदा किया। पर जो छोटी सी ब्लेसिंग थी, मुश्किल से 1 महीना हुआ था। पटियाला हाउस में 10 साल से केस चल रहा था, और वो केस बंद करके जब मैं आई हूँ लौट के, तो कहते हैं जीत गई ना, बंद कर देता है ना मैंने। मैं कितना ही है ऐसे बोला। मैंने कहा गुरुजी वो तो केस बहुत दिन से था, मैं आज गई तो वो तो मेरा तो ये रिहा कर दिया। कहते बहुत अच्छा। और कोई मेरा अपना नहीं था कि मेरी कोई जमीन जायदाद का था। अशोका होटल की यूनियन लीडर थी, तो उसमें उनकी तनख्वाह बढ़वानी थी, तो उसमें हमने हड़ताल करके और पूरा सड़क पे गए थे, जुलूस निकाल के, तो लड़ाई हो गई थी पुलिस वालों से। मैंने पुलिस वालों को मार दिया डंडे से। तो वो केस था, और गुरुजी ने करवाया, बताओ। ठीक। तो और गुरुजी तो मुझे सब कुछ, कहते सब हो कुछ गया कर ना। सकते हैं गुरुजी। हाँ जी, लेकिन बस और फिर हमारी कहते खड़ी हो जा, फिर कहते खड़ी हो जा, और रेनू आंटी मैंने कहा क्या, ये सत्संग सुना। अब मेरे को समझ में आया सत्संग क्या होता है। कहते जो हुआ है पटियाला हाउस में, गाड़ी उड़ के चली गई, वो सत्संग सुनाओ। मैंने फिर सुनाया 3-4 मिनट का। दैट वाज माय फर्स्ट सत्संग इन 99 हाँ जी, सितंबर में, बस जो भी अगर हम इन नहीं, फ्रंट ऑफ गुरुजी, इन फ्रंट जी, ऑफ गुरुजी।
हम भक्ति नहीं भी कर सकते तो हम अपनी ड्यूटीज पूरी करें, माँ बाप की ड्यूटी सेवा करें, माँ बाप की बस बात बिल्कुल। माने, उनको खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, बच्चों की सेवा करें, बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं। बिल्कुल सही है। राइट टाइम आएगा तो आपको गुरु जी अपने सामने नजर आएंगे। हम्म। जरूरी नहीं आप गुरु जी के पास, जो लोग गुरु मेरे जी तो के पास बच्चे नहीं जा मेरे हम सकते, लोग की सेवा कर रहे हैं। जो लोग गुरु जी के पास नहीं जा सकते, गुरु जी खुद उनके पास आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये लास्ट सत्संग सुनाती हूँ क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। हाँ जी। मुझे याद आ रहा है इस बात से कि गुरु जी के पास एक लड़का आता था, तो उसको आया था एक दिन गुरु जी के पास, हम्म। पर वो उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे, गुरु जी को पता था, बट वो अकेला आया था अपने घर से, कोई उसके साथ नहीं आया। तो अच्छा। गुरु जी ने जैसे ही उसको देखा और गुरु जी ने कहा, तू तू क्यों यहाँ पे आ गया, तू जा घर जा, अकेला आया है? तो उसने कहा हाँ जी। बोले कि जा घर जा, 6 महीने मुझे घर बैठ के याद कर, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और देखिए वो 6 महीने डे एंड नाइट गुरु जी को याद करता था कि गुरु जी मुझे ठीक करेंगे। और एक दिन, ये रघुवीर अंकल ने सत्संग सुनाया था उनके अपने हाँ। किसी में, और एक दिन 6 महीने बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने अपना थंब नेल मुंह से खींच के, दांत से खींच के निकाल दिया, और सारा ब्लड आ गया वहां पे। तो ओ सेवादार माय ने कहा गॉड। कि गुरुजी आपने ये क्या किया, ये क्यों किया? तो गुरुजी ने कहा उसके कर्म इतने भारी थे कि मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं हो सकता था इस जन्म में। ओह। ओहो। तो गुरुजी ने प्राइस पे की। यूनिवर्स में एवरीथिंग हैज टू बी इन बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। बिल्कुल तो ऐसे हमारे कर्म ना हो इतने नेगेटिव कि गुरुजी को प्राइस पे करनी पड़े उसकी, बिल्कुल। इतना बस हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक गुरु सेवा है कि अपने हर कर्म पे ध्यान रखो। ऐसा मत करो कि लोग बोले कि देखो गुरु जी का डिसाइपल है और ये क्या कर रहा है। ये बिल्कुल हमेशा सही। हमको ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्मों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। और यही आज का मैसेज है कि बस पाठ करो और अपने कर्मों पे ध्यान रखो। और फेथ रखो बहुत। फेथ तो वैसे ही आ जाता है, आंधी सुन सुन के भी आ जाता है, सब कुछ करके आ जाता है। सरेंडर के लिए ये सब बहुत जरूरी है कि पाठ करो, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो जैसा भी है। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो गुरु जी की कृपा तो है ही, गुरु कैनॉट बी पार्शियल के एक को आशीर्वाद दिया दूसरे को नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। पर गुरु जी फ्री में भी आशीर्वाद नहीं बांटते थे, नहीं तो सब बच्चे बिगड़ गए। आशीर्वाद का मिसयूज करेंगे, गुरु जी के आशीर्वाद का मिसयूज करेंगे। तो इसलिए बस जय गुरु जी। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज का ये ब्लेसिंग्स गुरु जी से आपने दिलवाई, हमको चांस दिया लंबी बात के है, लिए, लंबी बातें होगी। सेवा का मौका थैंक यू दिया। सुरेश अंकल, जय गुरु जी, और संगत जी। सारी संगत का शुक्राना जिसने पेशेंटली इतने टाइम तक सुना, बहुत बहुत हाँ शुक्राना बिल्कुल। सबका। बिल्कुल। जब तक जिए यही सब करते रहें, यही बस सबसे बड़ा यही कहते हैं। आशीर्वाद, सबसे बड़ा कर्म भी यही है कि आप गुरु सेवा करते रहो, बाकी सब गुरु जी देख लेंगे, आपको बस गुरु जी बोलने से की जरूरत नहीं यही पड़ेगी। ब्लेसिंग चाहिए कि हम बस आप अपने शरण में रखे रहें और आपकी को याद करते रहें, आपके लिए खूब सत्संग सुनाते रहें सबको। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही भाव से आपने असाइन पेजेस को रीड किया है गौरी आंटी, और उसको नरेट किया है, बहुत सुंदर। और जो आपने और रेनू आंटी ने, दोनों ने जो गुरु संगत को संदेश दिए हैं, काफी काफी मैसेजेस कम्युनिकेट हुए हैं आज आपके इन सत्संगों में। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। इसी के साथ ही महाराज से आज्ञा लेते